Okay, and then we have RE, and we have this ground. Okay, now because this, instead of one power supply, okay, I'm showing here your two power supply. Okay, so now suppose we have one VCC here, and that VCC is across these two resistances, R1, R2, and he is connected to base. Okay, so this is the same thing. Okay, if I draw battery here or if I battery draw there, okay, both are same thing. Now, any question? So now what I want, okay, I want to calculate what is voltage coming here. Okay, so I will use I will use Thevenin theorems. I सर want, ये इक्विवेलेंट सर्किट है क्या सर इसका? हाँ, और क्या भाई, ये VCC यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, इसमें हम assumption को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसमें assumption का अभी assumption को कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि IB नेग्लिजिबल, ये कुछ कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जो आएगा वो हम लिखेंगे। ओके, सर दो VCC हो गया ना सर? हाँ, तो अच्छा, एक इधर से अब देखो ये एक VCC है, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, इस पे पोटेंशियल कितना है, VCC है, ठीक है, VCC। और सपोज ये मैंने एक VCC कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, VCC सेम पोटेंशियल है, तो मैं दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है, तो अच्छा ज्वाइन करके एक ही सोर्स लगा सकता हूँ। वो दो सोर्स की जगह एक सोर्स लगा रखा है, ठीक है, पर काम इंडिपेंडेंट लूप में करते हैं। ये एक अलग लूप है, इनपुट लूप है, आउटपुट लूप है, ऐसे तो डेली कर रहे हैं हम लोग। ओके सर। इस सोर्स के लिए VCC है, इस सोर्स के लिए बैटरी सोर्स VCC है। Okay, now what I'll do, I'll calculate Thevenin equivalent of this circuit. ये सर्किट का एज इट इज रहने देंगे, और बाकी ये जो सर्किट है इसका Thevenin equivalent कर लेंगे, ताकि हमको पता चल जाएगा, हमको our purpose is to calculate IB, so for that we need what is the voltage. Okay, voltage and resistance RB here. So what I'll do now, I will calculate Thevenin equivalent. Okay, तो Thevenin equivalent करने के लिए V open कैसे कैलकुलेट करते हैं? I have one source R1, R2. Okay, so I want V open here across R2. Okay, so V open कितना हो जाएगा? R2 by R1 plus R2 into VCC. So V open, that will be my V Thevenin. Okay, that will be equal to R2. Okay, R1 plus R2 VCC. ठीक है, and similarly if I want to calculate R Thevenin, okay, so what I'll do, I will short circuit this one. I will turn off this source. In that case, what will happen? R2 parallel R1. This will parallel. So R1, R2, R1 plus R2. Okay. So now instead of using this circuit, I can simply use a battery. Okay, V Thevenin along with a resistance R Thevenin. Okay, so now I know this is IB. Okay, this is IC coming, IE coming. Okay, here we have VB. Okay, this is VCE. This is point VC. This is point VB. So now we can, sorry, this is not VB. This is VE, and this is VB. So now I can apply KVL like we are doing every day. Okay, I can write the equations. So if I take my loop 1 or input loop, this loop 2 input loop, okay, so in input loop what will happen? Minus V Thevenin, okay, IB R Thevenin, then plus VBE, okay, plus IE I can write 1 plus beta IB RE equals to 0. So if I want IB will be V Thevenin minus VBE, okay, upon R Thevenin plus 1 plus beta RE. Okay, so once I know IB, again I can calculate IC
by multiplying beta IB. Okay, and we know how to calculate VCE can be calculated VCC minus ICRC minus IERE, or you can take IE equal to IC, then also you can calculate IC into 1 RC plus RE. Okay, this is beta AB. So you know you have IB, you have IC. Okay, you can also calculate IE. IE will be your beta IB. plus 1 IC. Okay, IB. or beta 1 plus beta IB. ऐसा भी निकल direct. Okay, so whatever you want, you can calculate. Once you know IE, okay, you can calculate what is VE here. So the same thing. So now write for second loop already we written. Okay, this equation already we written. Second loop also we know now operating point, we know IC, we know VCE, we know operating point. Okay, if I want to calculate IC सर KVL लगाया ना सर आपने? हाँ, if I want IC saturation, then this VC will be 0. Okay, and I can calculate VCC upon RC plus RE. It will be my IC saturation. Okay, so now yes, I'm giving values. You have to calculate operating point. VCC is given 10 volt. Okay, R1 is given, जो मेरा हमारा मेन सर्किट है ना, उसको वहां पे ड्रॉ कर देते हैं. तो जो हमारा सर्किट है मेन वाला, RC, VCC, R1, R2, RE. Okay, this is ground. So R1 is given 10 kilo ohm. Okay, R2 is given 1 kilo ohm. सर लास्ट दो इक्वेशन लिख देते सर. RC is 2 kilo ohm. Okay, अब तुम लिखो, इतने सारे करा दिया, अभी लिखा हुआ तुम अपने आप लिख सकते हो, उसको लगाओ अपने आप, लिखा हुआ तो है ये पूरा लूप लिखा हुआ. Okay, RE is given, RE भी दिया 200 ohm. Okay, सर ये क्वेश्चन पहले भी करवाया सर, बट बाय थेवेनिन नहीं करवाया. हाँ था, अब थेवेनिन से करना है ना इसको. ओके सर, ओके. हाँ, सेम क्वेश्चन कल कराया था, उसी को थेवेनिन से करा रहे हैं. अब उसमें तो अजम्पशन था. VCC कितना दे रखा है सर? VCC दे रखा 10 वोल्ट्स. तो अब IB लिखना है, VThevenin minus VB. Okay, RThevenin plus 1 plus beta RE, और बीटा भी दे रखा है, इसमें 100 दे रखा है, बीटा 100 दे रखा है, एंड दिस इज जर्मेनियम. ओके, दिस इज जर्मेनियम. BB 0.3. So IC beta IB. So सबसे पहले क्या करना है, बी थेवेनिन कैलकुलेट करना है. बी थेवेनिन कितना आ रहा है? 0.9 वोल्ट. 10/11. बाकी का देखो 10/11 ना. ओके, 0.9 वोल्ट्स. 10 लोग हैं, आवाज 3 4 लोगों की आती है, बाकी क्या करते हैं पता नहीं. बी थेवेनिन इज 0.9 वोल्ट. ओके, आर थेवेनिन कितना आएगा? 0.9 किलो. 0.9 किलो. ओके, बीटा आपको 100 दे रखा है, सो यू कैन कैलकुलेट IB. IB का 28.4 माइक्रोएम्पियर. ओके, सो मैं लिख रहा हूँ, मेरा जो आ रहा है 0.0284 मिली एम्पियर, थोड़ा सा फर्क होगा.
ठीक है, IB 28 है, हाँ सर ये 28 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है, ये 28। सर ये आ रहा है सर। हाँ, और IC 2.84 milli ampere. Okay, and if you want calculate IE, you can calculate IE, otherwise you can keep same. IE is 2.868 milli ampere. यही Okay, आ रहा है सर। और VCE, ओके, अब VCE में तुम IC मांग, इसको IC मांग के करो या फिर इसको अलग करो। मैंने अलग अलग किया है, तो मेरा आंसर आया है 3.738 वोल्ट्स। ओके, 3.7 तो आना चाहिए, बाकी आगे देख लो क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है। आ रहा है VC 3.73। सर यही आ रहा है 3.738। ओके, बाकी लोगों का? निकाल दो सर। शिवेश, मृदुल, ओके। सो VC कैसे निकालेंगे ना, फॉर्मूला तो बताया था। VC is equal to VCC minus IC, okay, RC minus IE RE, okay। यहाँ से this VCC equal to this one, तो हमको चाहिए VCE, तो VCC minus voltage drop across resistances, okay। Now we'll see some previous year questions, okay। तो तुमको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, प्रीवियस years questions, okay, on ट्रांजिस्टर। इसको रब कर दूं मैं? यस सर। सर हाँ, सर ये वी थेवेनिन वोल्टेज थेवेनिन सर कौन सा फॉर्मूला लगाया सर? वी ओपन निकालेंगे ना R2 के अक्रॉस। अच्छा अच्छा, ओके सर। Okay, so we see previous year question on transistor, DC biasing वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। So see, this question is from NET JRF 2015, okay। So they have given two circuits, 10.7 volt okay, this is one 2 kilo ohm resistance. Here we have 10, okay, this is grounded, this is 10 kilo ohm, okay, this is 10 volt. So this is circuit A, and there can one more circuit B. Five 10 किलो ओम। अब ये क्वेश्चन तुमको ही करना है, मैंने ऐसे बहुत से क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, सेम एग्जाम में भी सेम ही तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। 10 volts, okay, and this is your circuit B। सर वो 10.7 वोल्ट या 107 वोल्ट? 10.7 this is 10.7 volts, okay, and assume this is silicon। क्वेश्चन में दे नहीं रखा क्या है, सिलिकॉन है, चाहो तो उसको 0 मान के भी कर सकते हो, आंसर में फर्क नहीं आएगा, पर क्योंकि 10.7 दिया है तो उससे पता चलता है कि इसको 0.7 लेना ही है, ओके। तो थोड़ा सिमेट्रिक क्वेश्चन आता है, सो अज्यूम दिस इज सिलिकॉन, इसके बिना करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। सो नाउ दे आस्किंग दिस इज सर्किट बी। सो पूछ रहा है दोनों सर्किट कौन सी रीजन में काम कर रहे हैं, तो ऑप्शन दे रखे हैं, ए कट ऑफ, बी सैचुरेशन, ए एक्टिव, बी सैचुरेशन, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि ये दोनों किस रीजन में काम कर रहे हैं। और सर सर्किट बीट में वो दूसरा कोई- रेजिस्टेंस कितना और है? बीटा देखो, हाँ, बीटा की जरूरत पड़ेगी क्या, बीटा 100 दे रखा है, ठीक है, बीटा दे रखा है 100। हाँ,
बोलो तो क्या दूसरी साइड वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है क्या? क्वेश्चन दे रखा है 1 किलो ओम। हाँ सर कौन ये 10 किलो ओम ही दे रखा है सर, हाँ 10 ओम दे रखा है सर। 10 किलो ओम, ये 10 किलो सर ओम है ये 10 मेगा ओम होगा सर मेरे हिसाब से। ना, 10 किलो ओम ही है, दोनों दोनों 10 किलो ओम है। ओके सर ओके 10 मेगा ओम क्यों होगा? सर, वो मिली एम्पियर में आ रही ना फिर यूनिट सर। तो आ रहे हैं दोनों, तो तभी तो पूछ रहा वो ओके कि सर। सैचुरेशन में है कि एक्टिव में है कि कहाँ पर है। अगर आई भी ज्यादा आ रहा है तो तुमको अंदाजा हो जाना चाहिए सैचुरेशन में जाएगा जाएगा, ठीक है ना। आई बी कम आना, माइक्रो एम्पियर में आना चाहिए, अगर मिली एम्पियर में आ रहा है तो तुमको हिंट मिल गया उल्टा, ये तो ज्यादा क्यों आ रहा है। ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सर फर्स्ट तो सैचुरेशन में। फर्स्ट सैचुरेशन में, वेरी गुड, ओके फर्स्ट सैचुरेशन में। फर्स्ट सैचुरेशन में है सर। हाँ सेकंड, और उसको चाहो तो वीसीबी कैलकुलेट करके भी देख लो एक बार, ठीक है, हमेशा अच्छा रहता है। ठीक है, दूसरा भी उसमें हाँ दिस इज वीसीबी, दिस इज वीबीई, तो चाहो तो एक बार वीसीबी भी कैलकुलेट कर लो। तो वीसीबी एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो पॉजिटिव आना चाहिए। सर सेकंड का बीटा क्या है? दूसरा भी सैचुरेशन में है सर। हाँ, दूसरे का भी आपको दे रखा है बीटा 100 दे रखा है, ठीक है। सैचुरेशन में सर, दूसरा भी सैचुरेशन ही आ रहा है सर। नहीं दूसरा सैचुरेशन कैसे आएगा भी, एक मिनट मुझे चेक करने दो। दिस इज 0.43, ओके। दूसरे का बीटा 10 है, दूसरे का बीटा 10 है, सॉरी दूसरे का बीटा 10 है। अब से करो, एक का 100 का 10 है। अब तो नहीं है सैचुरेशन में, नो सर सैचुरेशन। तो मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, किसी को नहीं आ रहा था बताना, ठीक है। एक्टिव है सर, एक्टिव है, एक्टिव आ रहा है। वेरी गुड, एक्टिव आ रहा है, ठीक है। सो इफ यू कैलकुलेट आई बी हियर, योर आई बी विल कम 10.7 माइनस 0.7, ओके, डिवाइड बाय आई बी ए, ठीक है, 10 किलो ओम। यहाँ तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, 10 किलो ओम, दैट विल किसी बिकम, को माइक ऑन है। यस क्या ये तो आ गया 1 मिली एम्पियर। देन यू फाइंड IC become 100 milliampere, okay, and if you calculate IC saturation, तो 10 मिलियन। okay, वो सीधा सीधा ये आ जाएगा, कैसा है, इसको 0 मान लो तो 10/2 आएगा सीधे ना, 2 ये सर 5 मिलियन। 5 मिली एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 मिली एम्पियर, ये 5 की है क्या, 2 के, तो वैसे जो आपने 2 के दे रखा, मेरे ख्याल से पहले 1 के था वो। नहीं ये तो 1 के, ये तो 1 के ही है। अच्छा हाँ यहाँ पे चलो 2 मानो 5 मानो, इसका 5 मानोगे तो भी क्या हो जाएगा, 2 मिली एम्पियर हो जाएगा। वो तो आईसी तो वो 100 मिली एम्पियर है, तो सैचुरेशन तो ये है, सर। ठीक है। और बीसीबी निकालो कितना आ रहा है, बीसीबी कितना आएगा। अच्छा जरूरत नहीं, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, मैं लिख लेता हूँ, मैंने जो निकाला है बीसीबी नेगेटिव आ रहा है, बीसीबी इज कमिंग नेगेटिव, ओके। 10 माइनस 200 माइनस 0.7, ओके, तो नेगेटिव आ रहा है। एंड इन दिस केस IB इज कमिंग, अब IB निकालना मैं बताऊंगा नहीं बार बार, तुमको उसको पता ही है, ठीक है। 10 किलो ओम, ओके, दिस बिकम 4.3 डिवाइड बाय 10 मिली एम्पियर, 0.43 मिलियन। 0.43 मिली एम्पियर, ओके। IC is 10, बीटा is 10 here, this become 4.3 मिली एम्पियर। और IC saturation कितना आएगा यहाँ 10 पे, मिलियन एम्पियर। 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर यहाँ 10 पर, milliampere। हाँ तो ये एक्टिव है, ठीक है। एंड VCB, इफ यू कैलकुलेट VCB that will come positive, okay, ये आ रहा है 10 minus 4.3 minus 0.7, you can find it, okay। so इसमें आंसर जो ऑप्शन है, आंसर बी दे रखा है, okay, that is A is in saturation and B is active, okay। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कुछ। हाँ, फर्स्ट का VB कितना है? किसका, फर्स्ट का VB? VBE, नो सर VB। VB निकालो तुम, VB कैसे निकलेगा,
भाई यहाँ से इसमें यहाँ से 10 वोल्ट चल रहा है, इसमें कितना ड्रॉप हो रहा है, जितने IB से मल्टीप्लाई करो उसको 1 मिली एम्पियर से, तो कितना हो जाएगा, 0.7 ही आ रहा है एग्जैक्टली इधर, ठीक है, क्योंकि 10 यहाँ से 1 मिली एम्पियर इंटू 10 किलो ओम क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, 0.7 ही बचेगा। हाँ सर वो हम VCB कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है बी, हाँ VCB। बी से भी करो, VCB करो, VB दे रखा 0.7। हाँ सर वो नेगेटिव आ रहा है। हाँ नहीं VC नेगेटिव आएगा इसमें, अभी यहाँ VB चाहिए नहीं, यहाँ पे VB ही चाहिए ना बस, VCB ये VC इक्वल टू VCB VB है, ठीक है, ये इक्वेशन 2-4 इक्वेशंस है वो याद रखनी है आपको। And then we'll see नेट जून में क्वेश्चन आया है, नेट JRF, ओके, जून 2013, ओके, तो इसमें भी सेम ही तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, NP एंड ट्रांजिस्टर देते हैं हमेशा ही, इसलिए हमने NP एंड ट्रांजिस्टर चूज किया, ठीक है। RB इधर लिखा है, बैटरी इधर लिखा है 9.7 वोल्ट, okay, and then we have given one resistance of 2 kilo ohm, and here एक बैटरी है 12 वोल्ट, ओके, ये सर्किट दे रखा है, इसको मान लो ग्राउंड है, तो ये बोल रहा है कि your VB base to emitter voltage 0.7 volt, okay, and this is 9.7 given, RB is given 300 kilo ohm, RB is 300 kilo ohm, this is RB is 300 kilo ohm, okay, and RC already given, RC value already given 2 kilo ohm, okay, and VCC given 12 volt, वो तो लिखा है क्वेश्चन में 12 वोल्ट, इसको बोला है VBB 9.7 वोल्ट, ओके, तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ओके, तो इन्होंने क्या कर दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, लोड लाइन प्लॉट की है और क्यू पॉइंट निकाला है, ठीक है, तो निकालो तुम लोग लोड लाइन और क्यू पॉइंट निकालो, पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। क्या दिया है क्या? बीटा नहीं दिया इस बार, बीटा नहीं दिया है, पर ऑप्शन देखोगे तो बीटा की जरूरत पड़ेगी नहीं, बीटा नहीं है सर, बीटा नहीं है इस बार, तो ऑप्शन से बता रहा हूँ, ऑप्शन करके ये मिटा दूं उसको, ठीक है, डेटा नोट कर रहे हैं। हाँ डेटा नोट कर लो, तो ऑप्शन दे रखे हैं तुमको, ए ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए, ये किसकी आवाज आ रही है, ऑप्शन ए दे रखा है, तो ऑप्शन ए, ये IB की कर्व दे रखे हैं, IB दे रखा है आपको 30 माइक्रो एम्पियर, ये किसका डिस्टर्बेंस आ रहा है, दीक्षा 32 माइक्रो एम्पियर एंड देन 5 माइक्रो एम्पियर, ओके, एंड एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, उसका वैल्यू दे दिया है 6 और 12 वोल्ट्स, ओके, और क्यू पॉइंट बोला है कि 30 माइक्रो एम्पियर पे है, ठीक है, इस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं, सारे ऑप्शन इस तरह के दे रखे हैं, जो ऑप्शन बी दे रखा है, इसका वॉल्यूम कर रहा है क्या दीक्षा, कैन यू म्यूट प्लीज, सतीश भी नहीं है, okay, so second option is you have 3 graphs, okay, you have IC, you have VCE,
बच्चे का वो अनम्यूट नहीं है बच्चा, ठीक है, आवाज डिस्टर्ब हो रही है बच्चे का, या तो उसको म्यूट करो या फिर मुझे होस्ट बनाओ। मैं कह रहा हूँ मुझे होस्ट बनाओ उसमें। ओके सो IB, हाँ 6 सेकंड ऑप्शन दे रखा है, दे गिवन 6 ओके 12 वोल्ट्स, ये तो ऑलरेडी हो गया ना, क्यों दे रखा है आपको, ठीक है, सो ए ऑप्शन, ये ऑप्शन बी दे रखा है, ठीक है, ये ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में दे रखा है आपको 30 जर्मेनियम है सिलिकॉन है? 32, इसको तुम सिलिकॉन मान के करो, सिलिकॉन मान के 32 and then 9.7, this is 9.7, okay, and option C is IC, okay, VCE, okay, this is 6 and this is there given 12, okay, but this is 32, 30 microampere, and say this is the Q point and this is 35 microampere. These all are IB values, okay, and option D में क्या कर दिया इन्होंने, ऑप्शन डी में दे दिया इन्होंने, ओके 32, ओके 32, 9.7 एंड क्यू पॉइंट दे दिया इन्होंने 35 माइक्रोएम्पियर, इसको क्यू पॉइंट बोल दिया है। बस चेक करके बता दो कौन सा है, 32 माइक्रोएम्पियर, 30 माइक्रोएम्पियर। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या करना है? नहीं सर, एक बार समझा दीजिए सर। भी ये भी क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है और क्वेश्चन के बोल रहा है कि इस सर्किट के लिए ये लोड लाइन है और ये ग्राफ है, ठीक है, IB के, तो बस आप IB कैलकुलेट कर लो, इसमें क्या क्यू पॉइंट निकाल लो। अगर क्यू पॉइंट नहीं निकाल पा रहे हो, IC नहीं निकाल पा रहे हो, तो एटलीस्ट IB तो निकाल ही पा रहे हो ना। सर ऑप्शन बी होगा। IB तो निकल आ रहा है, लेकिन तो IB ये हो गया, ठीक है, अब लोड लाइन निकाल लो, लोड लाइन तो आसान है। यहाँ पे एक्टिव रीजन 30 माइक्रो एम्पियर दे रखा है, उसकी वजह से थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि जो एक्टिव रीजन में आ रहा है भी आपका ये क्यू पॉइंट तो IB तो 30 आ रहा है, क्यू पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको लोड लाइन निकालना है। लोड लाइन का मतलब क्या है, ये क्या है, ये आई सैचुरेशन ऑप्शन होगा सर, ये आई सैचुरेशन है, और ये सर क्या है ऑप्शन होगा सर। अरे कैसे ऑप्शन होगा, आई सैचुरेशन कितना आ रहा तुम्हारा? सर आई सैचुरेशन आ रहा है हमारा 6 मिली एम्पियर सर। तो फिर ऑप्शन 6 और BCC कितना है? सर सी में भी 6 ही है और लोड लाइन 12 और मिड में होता है ना सर। हाँ तो 32 पे है ना, IB 32 है ना तुम्हारा। क्वेश्चन में IB कितना आ रहा है? सर IB जो आ रहा है वो आ रहा है मेरा IB 10 माइक्रो एम्पियर आ रहा है सर। IB 10 माइक्रो एम्पियर कैसा आएगा? 30 माइक्रो एम्पियर आ रहा है सर। हाँ तो बस तो 30 और 30 माइक्रो किस में, इस ऑप्शन में दे रखा है, इसमें 32 दे रखा है सी में। बट सर 30 तो सर उसमें होगा ना एक्टिव रीजन के करीब सर। तो उससे क्या मतलब, में देखते हैं ना सर, ऐसे थोड़ी देखते हैं, जहां जो आएगा, जो पॉइंट आना चाहिए वो आना चाहिए एक्टिव में। हम इसमें क्या बोला कि मिड में देखो, यहाँ देखो, वहां देखो। ओके सर, ओके सर, ओके, जो हमारा पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है, ठीक है। ठीक है सर। हमको तभी क्यू जैसे आ रहा, अभी इसमें बीटा नहीं दिया है तो ऐसी जरूरत भी नहीं वैसे हमको, क्योंकि IB दे ही रखा है इसने हमको, ठीक है। होगा तो इसी लाइन पे होगा कहीं पे क्यू पॉइंट, और इसका आई सैचुरेशन निकाल लिया, BCC निकाल लिया, हो गया। किसी को डाउट है क्वेश्चन में? सर थोड़ा कम समझ में आया सर, मतलब आपने पहले क्या किया, आपने IB की वैल्यू निकाल ली जो कि 30 माइक्रो एम्पियर आ गई। IB 30 माइक्रो एम्पियर आगे IB की वैल्यू ना 9 कैसे निकाली? 9.7 9.7 माइनस 0.7 डिवाइड बाय RB। ओके वेरी गुड। तो IB आ गया 9.7 माइनस 0.7 डिवाइड बाय 300 किलो ओम, ओके। तो ये तुम्हारा आ गया 30 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अब तुमको ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है, ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए IC चाहिए, ठीक है ना। यस सर। तो IC दे ही रखा है। हाँ सर। तो ऑपरेटिंग अब लेकिन लोड लाइन तो निकाल सकते हो, लोड लाइन। हाँ। लोड लाइन में क्या निकालना है आपको? निकालना है कि BCC निकालना है। लोड लाइन क्या होता है, ये लास्ट पॉइंट होता है BCC और ये आई सैचुरेशन। तो आई सैचुरेशन आपका 6 आ रहा है निकालने से। IC 12/2 करेंगे ना सर? IC सैचुरेशन कितना आएगा? 12/2 12/2 आएगा, ठीक है। 6 मिली एम्पियर आ रहा है।
तो बस इसको तो ये इसको प्लॉट कर दो। अब आपका क्यू पॉइंट इसमें किसी न किसी लाइन पे तो होगा ही होगा। अब हाँ अब ये बोल रहा है IB 30 है, तो IB 30 को यहाँ पे कट कर रहा है वो, तो ये आपका क्यू पॉइंट है। अब यहाँ और इसमें जो जो वैल्यू होगा वो IC हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके यस सर। ठीक है, तो बस ये और सर VCC सर वो इसके इतने सेट में हो जाए, वो पूछे ही नहीं है। वो बस ये क्यू पॉइंट उसने खुद ने बता दिया कि इस पे ही है। इन तीनों ग्राफ में से क्यू पॉइंट इसने बोल दिया ये क्यू पॉइंट है, तो बस हमारी कहानी खत्म हो गई। ये क्यू पॉइंट है, 30 माइक्रोएम्पियर पे हमने कर दिया, हमने लोड लाइन निकाल दी। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में एक तो लोड लाइन प्लॉट करना था, ठीक है, और क्यू आइडेंटिफाई करना था। तो ऑप्शन इसका कौन सा है, बी वाला ऑप्शन सही है। और सर अगर VCC निकालना हो तो कैसे निकालें? वो तो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या करेंगे, अच्छा नहीं है तो छोड़ो। इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नहीं निकाल सकते। ओके सर। ठीक है, अब एक ऐसा ही क्वेश्चन दिया जून 2019 में, अच्छा क्वेश्चन था बहुत। चाहो तो उसको सॉल्व करके देखो और चाहो तो लॉजिक से बता दो। नेट JRF, ओके, जून 2019, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है जो अभी हमने किया है। RC, VCC, okay, and then they given RE। ये क्वेश्चन मैंने कल बताया था, कल परसों बताया था कैसे करना है, हालांकि इसे आइडिया से भी कर सकते हैं। ठीक है, R1, okay, R2। So R1 is 80 kilo ohm given, okay, R2 is given 20 kilo ohm, and VCC is given 20 volts, beta is given 50, okay, RC is given 5 kilo ohm, and RE is given 1 kilo ohm, okay. So this is NPN transistor. Again you can take a silicon, okay, silicon transistor, so VB is 0.7, okay. अगर नहीं दे रखा है कुछ VB अगर कुछ नहीं देगा तो आप उसको 0 ले सकते हो, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा उससे, ठीक है। तो वो जरूरत नहीं है कि 0.7 ही लो, 0 भी ले सकते हो, ठीक है। RC आ गया, बीटा 50 दे रखा है, so this is your IE, this is your IC, okay, and whatever IB will come, वो तो निकाल के देखना पड़ेगा IB कितना आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। So now इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है अगर मैं R2 को डिस्कनेक्ट कर दूं, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर मैं इस सर्किट में R2 को हटा दूं तो क्या होगा। नंबर 1 ऑप्शन दे रखा है इसने, ठीक है, VB and VC increases, okay, and B में दे रखा है both VB and VC decreases, C VB decreases but VC increases, okay, and option D is given, VB increases, okay, but VC decreases, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप इसको कैलकुलेट करो, पहले ये इस सर्किट के अंदर सब दे रखा है, RB R1 सब कुछ दे रखा है, आप VThevenin लगा के आप कैलकुलेट करो कितना है इस पे, यहाँ पे VB कितना है, ठीक है, और यहाँ पर VC कितना है, VThevenin बना के बैटरी आएगा, RB आएगा, जितना लॉस हो रहा है जो बचा हुआ आएगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और VC निकालने के लिए आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, VC कैसे निकालते हैं, VCC माइनस IC RC, ओके। ये यहाँ से ये VC, तो आप पहले इस सर्किट के साथ में विथ R2 VB और VC निकालो, ओके, और फिर R2 को हटा दो, फिर जो सर्किट बचा है, सिंपल सर्किट बचा है, उसके लिए VB और VC निकालो और देखो कि कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, ठीक है।
तो एक ऑप्शन तो ये है कि ये तुमको करना है, एक शॉर्टकट तरीका बताने का, ठीक है? कैसे बताएंगे? सर, हाँ सर मेरा कनेक्शन चला गया था सर, एक हाँ। ब्रीफ ये क्वेश्चन है, ठीक है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर मैं R2 को हटा दूं, ओके, तो मेरा VB और VC पे क्या फर्क पड़ेगा? ओके, VB और VC दोनों इंक्रीज हो जाएंगे या बहुत डिक्रीज हो जाएंगे? VB बढ़ जाएगा और C डिक्रीज हो जाएगा, या VB डिक्रीज हो जाएगा, C इंक्रीज हो जाएगा? तो ये इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ओके, तो पहले तो ये विथ R2 और बोल रहा है फिर R2 हटा दो, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, VB पे और VC पे क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, तो तरीका वही है जो सारे डेटा दे रखे हैं, यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज VB एंड VC और फिर इसको हटा के सिंपल सर्किट बन जाएगा। फिर कैलकुलेट करो VB VC और देख लो कि कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। ओके, और दूसरा तरीका क्या है कि आपको पता ही है, अगर मैं ये VCC मेरा आ रहा है यहाँ से, इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है, तो सारा करंट तो यहाँ पे ज्यादा करंट जाएगा ना पहले कंपेरिजन में, ये अभी करंट नीचे जा रहा है, इसको मैं हटा ही दूंगा तो यहाँ ज्यादा ही करंट जाएगा, पूरा IB में तो जाएगा फिर। ठीक है ना? तो इसका मतलब आपकी क्या हो जाएगा, अब ये VB बढ़ेगा ऑब्वियसली बढ़ेगा सर ऑप्शन यस सी सर, होगा। VB बढ़ेगा V सर। बढ़ेगा और VB बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ये VE बढ़ेगा, जैसे कल बताया था मैंने ऑप्शन प्लॉट करके, VB बढ़ेगा तो ये VB है, ये कांस्टेंट है, काम एक्टिव है, तो अगर VB इंक्रीज हो रहा है तो क्या इंक्रीज होता है, VE इंक्रीज होता है, ठीक है? VE इंक्रीज होगा तो क्या होगा, IE इंक्रीज होगा, और IE इंक्रीज हो रहा है मतलब IC इंक्रीज हो रहा है, या सीधे सीधे बोल सकते हो अगर आपका IB इंक्रीज हो रहा है, सीधे अगर रेजिस्टेंस हटा ही दिया है तो आपका IB इंक्रीज हो रहा है। ओके, और IB इंक्रीज होता है इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका IC इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? IC इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, BC डिक्रीज। डिक्रीज BC डिक्रीज हो रहा है, वेरी गुड, ठीक है? तो पहले तो यहाँ IB इंक्रीज होगा, IB इंक्रीज से VB या VB इंक्रीज होगा, ठीक है? VB इंक्रीज होने से यहाँ V इंक्रीज होगा, V इंक्रीज से IE इंक्रीज होगा, IE इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब IC भी इंक्रीज हो रहा है, IC इंक्रीज हो रहा है इसका BC कम होगा, तो ऑप्शन जो है वो उसका D सही है, VB इंक्रीजेस बट BC डिक्रीजेस। ओके, सर ये तो एक चीज था सर कि IE इक्वल्स टू IB प्लस IC होता है ना सर, तो सर IB इंक्रीज हुआ तो IC कैसा इंक्रीज हुआ, मतलब IE इंक्रीज होना चाहिए ना, क्या? मतलब ये- IE इक्वल्स टू IB प्लस IC होता है ना सर। हाँ अब IB इंक्रीज हुआ तो हाँ। IE इंक्रीज हुआ। ऐसा नहीं होता है, तो ये जो हाँ, कितनी बार समझ चुका हूँ, अगर IB बढ़ाना है तो आपको ICI दोनों बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा। जैसे आपको ये सर्किट आपको, ठीक है, ये आपका IB आ रहा है, ये I से आपका 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, या होल जा रहे हैं, ठीक है, 20 इधर आ रहे हैं, 80 इधर जा रहे हैं। ओके, अगर इसको 40 करना है तो इसको 200 करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर जाके यहाँ पे 160 आएगा, तो सब इकट्ठा ही होता है, ये ऐसा नहीं होता, अलग अलग होता है। ओके सर, ये ठीक है, पॉइंट नोट कर रहा हूँ सर। हाँ। तो ये तो ऐसे लॉजिक से बता दो, या फिर कैलकुलेट करके देखो, आप कैलकुलेट करके देख लो एक बार, मैंने तो कैलकुलेट भी करके देखा है, ठीक है? सर फिर तो सी ऑप्शन भी सही होगा सर। दो ऑप्शन कैसे नहीं हो सकते हैं, एक ऑप्शन से होगा। सर VB घटेगा तो VC। क्या बोल रहे हो आप? और सर अभी आपने कहा कि VB बढ़ेगा तो VB बढ़ जाएगा। VB बढ़ेगा तो VE बढ़ेगा, VE हाँ सर, तो VB तो कौन VE बोल रहा हूँ, VE। यस सर। हाँ तो VC डिक्रीज होगा ना सर। हाँ, तो सर उसके उल्टा भी तो हो सकता है कि VB डिक्रीज हो तो IB भी डिक्रीज हो जाएगा सर। तो वो तो क्या, हम तो बढ़ा रहे हैं ना, हम तो देखना पड़ेगा ना, अभी हम तो रजिस्टर हटा रहे हैं ना, यहाँ ओके, हाँ पे यस हाँ ठीक है सर, ठीक है हम तो ठीक। बढ़ा ही रहे हैं हाँ हम ठीक सर, ठीक। ठीक है। वो सर वह ऑप्शन के उसमें चला गया, ठीक है सर। हाँ, तो अभी तुम चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है, मैंने कैलकुलेट भी करके देखा है, ठीक है। जैसे कैलकुलेट कर लिया सर मैंने भी, हाँ, बिल्कुल। तो फर्स्ट केस में आपका जो VB आ रहा है दैट इज कमिंग 3.2216, ओके, एंड VE का V तो जरूरत नहीं है हमको, 2.49, ओके, और VC इज कमिंग 7.7 वोल्ट्स, ओके, ठीक है। और सेकंड केस में क्या रहा है, सेकंड केस में
दिस इज फर्स्ट केस, ओके, विद दिस वन, और उसको हटा दें, ये सिंपल सर्किट बना दें और पूरी वापस आईबी कैलकुलेट करें। इस केस में जो आईबी निकाला मैंने, फर्स्ट केस में आईबी मेरा आया है, आईबी इज 0.049 मिली एम्पियर, ओके, and beta is given 50, okay, so you can find IC is coming 2.46 milliampere, okay, so IC पता है आपको, I भी निकल जाएगा दोनों को जोड़ के, okay, I पता है, so you can calculate what is your 2.49 milliampere, okay, जो भी है I, okay, sorry, हाँ, तो बस ये पॉइंट्स पता ही है, तो आई बी आर बी जो भी रेशनल आया कैलकुलेट करके आप निकाल लो, वीबी निकाल लो, इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट बना के, ठीक है। तो आर थेवेनिन कितना आ रहा है, कोई निकाल रहा है क्या? यस सर, आर थेवेनिन जो आ रहा है सर 16 किलो ओम आ रहा है सर, और वी थेवेनिन? और वी थेवेनिन आ रहा है 4 वोल्ट। वेरी गुड, सो वी 3 वोल्ट 16 ओम आ रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके अब ये 16 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, ठीक है, तो 4 में से कम हो जाएगा जो भी आएगा ना, IB इंटू आर थेवेनिन, इसको 4 वोल्ट 64 माइक्रो एम्पियर आ रहा है सर, 64 माइक्रो एम्पियर। हाँ, क्या कौन सा आईबी आ रहा है 64 माइक्रो एम्पियर। 64 कहाँ आ रहा है, IB 6 कहाँ आ रहा है, IB कैसे निकालेंगे? फर्स्ट केस में ना 4 माइनस 0.7, ओके, अरे ठीक है सर, ठीक है यहाँ कम ही आएगा सर, हाँ 3.3, ठीक सर। ठीक है, तो जो IB आएगा, तो और सेकंड केस का मैं VB लिख दे रहा हूँ। सेकंड केस में जो मैंने VC निकाला है, VC और VB, ओके, सेकंड केस में मेरा VB जो है वो बढ़ के हो गया है 11.28 और VC जो है वो मेरा माइनस में चला गया है 7.25 वोल्ट्स। कैलकुलेट करो, बताओ मुझे अभी, बाद में तुम सर, करोगे भी नहीं तुम लोग। सर एक चीज था सर कि हम्म। वीबी तो इंक्रीज हुआ, ये समझ में आया क्योंकि आईबी इंक्रीज हुआ। हाँ आईबी इंक्रीज हुआ तो आईसी इंक्रीज हुआ, आईसी इंक्रीज होने से वीसी डिक्रीज हुआ, यही रीजन है ना सर? ये क्वेश्चन है ना भाई, VC यस सर, इस पॉइंट पे चाहिए, VC तो क्या होगा, VC से इतना माइनस होके यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, तो अगर यस IC सर, आपको बढ़ गया तो ये कम नहीं हो जाएगा? वीसी कम। ओके सर, थैंक यू सर। निकालो कितना आ रहा है। सर फर्स्ट केस में IB 0.206, IB 0.049 मिली एम्पीयर आ रहा है नो सर फर्स्ट केस में मतलब IB जब IB ना, हाँ, तो आपका वी थेवेनिन कितना आया 4 वोल्ट और आर थेवेनिन 16 आया, ठीक है, 6 4 16, माइनस 0.7 by 16, हाँ, तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस, ये हट जाएगा आपका, वी थेवेनिन कितना आ जाएगा आपका 4 वोल्ट्स, ओके, आर थेवेनिन आपका 16 ओम्स, तो अब निकाल लो IB 16 ओम प्लस कितना 1 किलो ओम, 1 प्लस बीटा कितना हो जाएगा 51 किलो ओम, 51 किलो ओम, 51 किलो ओम, ठीक है सर, ठीक है, वो तो करना पड़ेगा ना, ये भी 16 किलो ओम है ना, ओम थोड़ी है, तो उसको जोड़ करोगे तो ये आएगा IB। इक्वेशन लिखना तो हमेशा याद रख लो, I इक्वल टू 1 प्लस बीटा IB, अगर IB चाहिए तो, IC चाहिए तो इसको IC मान लो। अब इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, ये तो सब आना चाहिए फटाफट फटाफट, ओके, उसके बाद तो सिंपल क्वेश्चन है। कर लोगे ना इसको, हटा दूं ना मैं इसको, मिटा दूं ना, यस सर। यस सर, कर लेंगे सर, कर लेंगे। बस वैल्यू लिख लो, ठीक है, बस वो थोड़ा बस ये पता होना चाहिए घट रहा है बढ़ रहा है, कैलकुलेशन तुमको आती ही है, और इससे पहले तो निकाल ही रहे हैं हम लोग, क्या है VC का फॉर्मूला पता ही है, VB पता ही कैसे निकालेंगे, तो कर लेना इसको ऑप्शन। और डायरेक्ट तो बता ही दिया मैंने आपको कैसे करना है। अभी क्वेश्चन जेस्ट में आया है, जस्ट 20 में आया है, ओके, इसमें ये बोल रहा है कि सेम
ट्रांजिस्टर दे दिया है, ओके, बीटा दे दिया है 50 इस बार, ओके, आरसी दे दिया है VCC 10 वोल्ट दे दिया है, ठीक है, और ये 1 किलो ओम दे दिया है आपको, यहाँ पे दे दिया है RB 10 किलो ओम, ओके, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया है 2 वोल्ट की बैटरी लगा दिया है, दिस इज VBB 2 वोल्ट लगा दिया है, VCC लगा दिया, ठीक है। तो और बोल रहा है कि आई सैचुरेशन के केस में, ओके, VCE इन सैचुरेशन केस में 0.2 वोल्ट है। वैसे तो हम VC जीरो मानते हैं सैचुरेशन केस में, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसा मैंने बताया भी था कि एक्चुअली जीरो से पहले ही आ जाता है सैचुरेशन, 0.2 पर जाता है VC। तो VC सैचुरेशन क्या है, इस बार दे दिया ना 2 वोल्ट दे दिया है, सैचुरेशन केस में VC 0.2 है। तो पूछ रहा है कि IC कितना है, ओके, और सैचुरेशन में है कि नहीं है, बताओ। सैचुरेशन में है, एक्टिव में है, कहां पर है, IC निकालो और रीजन बताओ। और IC सैचुरेशन के लिए दे दिया इसने। IC सैचुरेशन कैसे निकालोगे, VCC VB 0 है क्या? VCC माइनस 0.2। अरे आई सैचुरेशन पूछ रहा हूँ, IC सैचुरेशन। अच्छा, यस 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 सर। भी पहले क्या कहता है, VC 0 लेते थे, हाँ सर। VC से अपन RC लेते थे, अब की VC 0 नहीं लेना है, वो बोल रहा है सैचुरेशन में VC 0.2 है, तो बस ये सैचुरेशन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और अब निकाल लो, पहले IB निकाल लो। IB तो एक ही IB, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। IB कितना हो गया, 5 मिली एम्पियर हो गया, कितना 0.2 मिलियन के। 0.13 मिलियन। तो IB क्या हो जाएगा आपका, IB हो जाएगा आपका 2 डिवाइड बाय 10 किलो ओम, ओके। सो 1.2 मिली एम्पियर, ठीक है। और IC कितना हो जाएगा, 10 मिलियन के। 10 मिली एम्पियर, ओके। IC सैचुरेशन कितना आ रहा है सर 9.8 आ रहा है, बट सर वो अगर VB 0.7 लेंगे तो फिर तो कम आएगा। क्या 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 लेंगे सर VB 0.7 नहीं लेना सर। लेना है ना, हाँ तो अच्छा, सर हाँ 2 हाँ हाँ माइनस 0.7 हाँ, 1.3 करो होगा सर। हाँ हाँ करो, उसको भी करो, चाहो तो देखो बिना करने भी कर दो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो कितना आएगा वैसे, 0.13 मिली एम्पियर आएगा सर। 9.8 आई की मिलियन के। वैल्यू 0.13 मिली एम्पियर हो जाएगी अब। हाँ सही करना पड़ेगा, 0.7 आंसर मिक्स करने के लिए करना पड़ेगा। तो कितना आ रहा है तुम्हारा, सर VB 0.13 मिली एम्पियर। 0.13, 0.13 मिली एम्पियर। ओके। और IC कितना आएगा, सर IC आ रहा है 6.5 मिली एम्पियर। 6.5 नहीं आएगा, 6 ही आना चाहिए। एक सर, मिनट में, 6.5। एक मिनट मुझे चेक करने दो, ठीक है। 1.2 माइनस 0.7 0.13 मिली एम्पियर, ठीक है, 6.5 आ रहा है, सही है। Yes, IC इज sir. इक्वल टू 6.5 मिली एम्पियर। और ये कितना आ रहा है, 9.8 सर मिली ये 9.8 मिली एम्पियर, तो सर तो एक्टिव रीजन हो गया। एक्टिव रीजन हो गया। तो उसमें ऑप्शन दे रखा है IC इक्वल टू 6.5 मिली एम्पियर एंड नॉट इन सैचुरेशन, तो यही ऑप्शन सही है। एक में दे रखा है 6 मिली एम्पियर एंड सैचुरेशन में है, एक में ये दे रखा है, और बाकी दे रखा है करंट 10 है, पारा है, जो भी दे रखा है। हमारा तो 6 ये आ रहा है, 6.5 आ रहा है, और नॉट सैचुरेशन, और ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन ए सही है, ठीक है, क्लियर है। ठीक, क्लियर सर। और किसी को डाउट है, अब गेट के क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं गेट का। और ये अभी DC कर रहे हैं, ठीक है, बाद में कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी करेंगे, उसमें थोड़ा इसी है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं, DC से आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन DC से आते हैं, चाहे आप फैट ले लो, मॉसफेट ले लो। एंड देन गेट 2012, ओके, इसमें सर्किट दे रखा है, $100 किलो ओम, 900 किलो ओम, ओके, इससे मैच करना है।
IE और ये दिखा है 100 ohms, ओके, और इसको कर दो इसमें 15 वोल्ट दे रखा है इधर, ओके। तो ये क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि लोड लाइन प्लॉट करो, ओके, लोड लाइन प्लॉट करो प्लस क्यू पॉइंट बताओ, लोड लाइन बताओ प्लस क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताओ। बीटा वगैरह कुछ दे। सर बीटा बीटा दे रखा है इसमें 100, तो सबसे पहले तो तुम वैसे ही निकाल लिया करो, सैचुरेशन निकाल लिया करो, सैचुरेशन पॉइंट, ओके। तो सैचुरेशन पॉइंट कौन से हो जाएंगे, ये तो यहाँ पे 15 ही आ जाएगा, बीसीसी 15 दे रखा है। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा अभी तक, ओके। तो फॉर्मूला लिख के सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आ जा रहा है सर। हाँ, तो अभी आपको निकालना है वीसीसी 15 वोल्ट है, ठीक है, और आईसी सैचुरेशन कैसे निकलता है, यहाँ से निकलेगा, बीसीसी BC बाय 0 ले लो 8C इसको। प्लस RB। हाँ, तो 15/900 किलो ओम प्लस 0.1 किलो ओम, जो भी है, कितना आ रहा है आपका, सॉरी ये 900 ओम्स है क्या, जैसे गिव मी 1 मिनट, ये 900 ओम्स है, ओके, नॉट वो है, 900 ओम्स है और ये 100 ओम्स है। तो ये कहता है ओम्स मतलब 0.9 किलो ओम, ये 0. तो ये 1 किलो ओम हो गया, 15 मिली एम्पीयर। 50 मिली एम्पियर है। हाँ, तो ये 15 हो गया, ठीक है, बस अब निकालो क्यू पॉइंट। शिवेश, आई सैचुरेशन निकालना तो आ रहा है ना तुमको? यस सर, आ रहा है सर। ठीक है, तो ये 15 वोल्ट हो गया। अब क्यू पॉइंट में क्या क्या चाहिए आपको, एक आईसी चाहिए, और एक आपको वीसीई चाहिए, वीसीई इंटू आईसी, वीसीई डॉट आईसी चाहिए। तो पहले आईबी निकाल लो, आईबी कितना आ रहा है तुम लोगों का, मेरा आईबी आ रहा है 0.1298 मिली एम्पियर, ये आ रहा है, और आईसी हो जाएगा, आईसी आ जाएगा 12.98 मिली एम्पियर, ओके। तो इसको ऑलमोस्ट 13 मान लो। हाँ हाँ सर, एक बार आईवी का इक्वेशन लिख के दिखा देंगे, केवी वाला। हाँ आईबी, बस एक बार। सो आईबी क्या हो जाएगा आपका, ये वीसीसी 15 माइनस 0.7 वीसीसी माइनस, पीबी, ओके, पीबी 0.7, ओके, और ये आएगा 100 किलो ओम, आरबी, यस सर, 100 किलो ओम प्लस ये कितना है 100 ओम्स है, ओके, तो ये कितना हो गया 0.1 इंटू बीटा प्लस 1, सो 101 इंटू 0.1, 0.1 किलो ओम, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, बीसीसी आपका 15 है, 15 माइनस 14.3, ओके, तो ये हो गया 100 किलो ओम, और ये कितना हो जाएगा 10 किलो ओम, 10.1 किलो ओम, ओके। यस सर, सो 14.3 डिवाइड बाय 1110.1 किलो ओम, इतना मिली एम्पियर आ जाएगा, 0.129, 0.1298, ओके, यस यस यस। और इससे आईसी आ जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट 13 है, ओके। अब बता दो वीसी कितना आ रहा है, वीसी कैसे निकालोगे, बीसीसी माइनस आईसीआरसी, वीसीसी 15 माइनस आईसीआरसी, आईसी अब निकाल ही लिया है, 12 या 13, 15 जो भी निकाला, 13 निकाला, 13 मान लो, ठीक है, आईसीआरसी 90 किलो ओम, माइनस IRE ओके, सर 3.3 मिली एम्पियर, 3.3 वोल्ट, नहीं 3.3 आएगा, सर 3.3 वोल्ट आएगा। नहीं माइनस आई से भी बाकी लोग का कितना आ रहा है, सर माइनस IRE नहीं होगा, VC हाँ VCC वीसी, माइनस हाँ ICRC माइनस IRE। ये तो आएगा ना, बीसीसी माइनस ये तो आएगा, ये हो गया आईसी हो गया, और ये भी तो आएगा आरई, ओके, आई को भी आईसी मान लो, 13 मान लो, 13 मान लो, या जो 13 पॉइंट समथिंग आएगा, आईबी आईसी ऐड करोगे तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा, मैं 13 मान ले रहा हूँ इसको एवरेज, ठीक है, आईसी मान रहा सर हूँ ये 0 सर 900 ओम था ना सर? हाँ
हाँ तो सर हाँ आप तो 9 को कर दो, 0.2 कर दो। 0.9 हो जाएगा। हाँ ठीक है। यस सर, तो सर हमें वीसी निकालना है, वीसी निकाले सर हम लोग। बीसीई ओके 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 सर ओके। तो 15 माइनस ये कितना आ जाएगा? ये 0, ये 2 आ जाएगा कुल मिला के। सब मिला के 2 आ जाएगा ना? यस सर। हाँ 2 ही आ रहा है आंसर। तो ये 2 वोल्ट्स आ रहा है और ये 13 मिली एम्पियर आ रहा है। ये आंसर आ रहा है आपका। ठीक है। सर ये लेफ्ट हैंड साइड से केवीएल लगाया ना एबी निकालने के लिए, आईबी निकालने के लिए। क्या क्या निकालने के लिए? आईबी। हाँ यस आईबी, सर। आईबी लेफ्ट में लगाया। ठीक है। ओके ये सर। यहाँ पे वीबी है और ये यस आई सर। है। आई पता ही है तुमको, 1 प्लस बीटा आई भी होता यस है। सर, यस सर, यस सर, समझ गया। ओके। ठीक है। और एक क्वेश्चन और था, कहाँ गया वो? लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 मिनट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मिटा दो। यस सर। ये भी गेट में आया हुआ है। ठीक है। Okay. 1 किलो ओम पी इनपुट लगा रहा है इधर। ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज वी आउटपुट। 3 किलो ओम 10 वोल्ट्स। ओके। वी इनपुट दे रखा है आपको 5 वोल्ट्स। वीबी आपको दे रखा है 0.7 volts and beta is given you 100. Okay, he asking V out. सर आरबी। आरबी आपको दे रखा है ने 200 किलो ओम। V out का मतलब क्या निकाल रहे हैं, क्या निकालना है? वीसीई। VCE का निकालना है। सर वीसी सर वीसी। VC निकालना है आपको बस। ठीक है। सो V out इक्वल टू VC इक्वल टू VCC माइनस ICRC। ठीक है। और ये वी इनपुट 5 वोल्ट दे रखा है, 201 किलो ओम दे रखा है। जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर है, सेम आई आ रहा है इधर, आई भी इधर आ रहा है। एंड दिस इज योर आईसी। अब आंसर निकाल के बताओ, बहुत बता दिया तुमको मैंने, पूरा स्पून फीडिंग ही हो रहा है तो। आएगा 200 सर किलो ओम आईबी 014। प्लस 101 किलो ओम। ठीक है, सही है ना? सर आईसी 1.42 मिली एम्पियर। फाइनल आंसर निकाल के बताओ, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? आईबी मेरा आ रहा है 0.01428। ठीक। और आईसी आ रहा है मेरा, वीसी 5.7 वोल्ट। यस सही है, 1.428 मिली एम्पियर आ रहा है। ठीक है। और जो VC आएगा, जो V आउटपुट है, दैट विल कम एज 10 माइनस ICRC 3 10⁻³ 1.428 into 10⁻³ okay, that will come as a 5.716 volt.
Okay. So I'm stopping here. Okay, we'll meet tomorrow. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you.